बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर 3 है, जो कि बोरिक एसिड्स के हवाले से है। बोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़, बोरिक एसिड क्या होते हैं, बोरिक एसिड की प्रॉपर्टी, आर्थोबोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ और उसकी प्रिपरेशन और उसके यूजेस भी हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। सबसे पहले बोरिक एसिड। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट बोरिक एसिड्स। 4 अहम बोरिक एसिड्स हैं। आउट ऑफ दीज आर्थोबोरिक एसिड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनमें से आर्थोबोरिक एसिड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इज द स्टेबल वन। दिस इज आल्सो स्टेबल, ये पायदार भी होता है आर्थोबोरिक एसिड। द रिमेनिंग बोरिक एसिड आर स्टेबल इन सॉलिड एंड चेंज इनटू आर्थोबोरिक एसिड इन सॉल्यूशन। Remaining boric acid are stable in solid state but change into orthoboric acid in solution form. Name and chemical formula of these boric acids. Number 1, orthoboric acid, H3BO3. Number 2, metaboric acid, HbO2, chemical formula. Number 3, tetraboric acid, chemical formula H2B4O7. Number 4, pyroboric acid, its chemical formula H6B4O9. So these are the boric acid with their chemical formula. The number 1 boric acid, orthoboric acid, is most important one. We will study about its properties, preparation and uses later on in this topic. Now, how these other 3 boric acid convert into orthoboric acid, we will study about this. Number 1, metaboric acid HbO2 plus water gives rise H3BO3 orthoboric acid in solution form in water. In water, metaboric acid changes into orthoboric acid. H2B4O7 tetraboric acid. When we add this tetraboric acid into water, it changes into orthoboric acid. Next is pyroboric acid, H6B4O9. When we add this pyroboric acid to water, it changes into orthoboric acid. तो ये जो मेटाबोरिक एसिड है और टेट्राबोरिक एसिड है और जो आर्थोबोरिक पायरोबोरिक एसिड है, इनको जब पानी में ऐड करते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, तो ये आर्थोबोरिक एसिड में चेंज हो जाते हैं। Now we come toward the orthoboric acid or boric acid. Orthoboric acid, boric acid, its chemical formula is H3BO3. It is white crystalline chemical substance, triclinic. Triclinic is a crystalline form in which the length of the crystal and the angle of the crystal are not equal. It is white crystalline solid chemical substance, triclinic. तो ये सफ़ेद कलर का वाइट केमिकल सब्सटेंस होता है और ये ट्राइक्लिनिक इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर 2.6% एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेरिंगली सॉल्युबल, लिटिल सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। ठंडे पानी में कम हल होता है, यानी 2.6% यानी 2.6 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, but dissolve readily in hot water 37% at 107 degree centigrade. In hot water 37 gram of boric acid dissolve in 100 gram of water at 107 degree centigrade. यानी कि जब आप पानी गर्म कर देंगे 107 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो 37 ग्राम बोरिक एसिड डिजॉल्व हो जाएगा पानी में, ज़्यादा डिजॉल्व होगा। This temperature variation in solubility form the basis for its separation and variation. This temperature changes make possible the separation of the boric acid from water or liquid, any other liquid, and its purification. If there are mixture of orthoboric acid and other salts, we can separate because of this temperature variation
and changes the solubility of the orthoboric acid. तो ये जो हम देखते हैं जो टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्युबिलिटी में फ़र्क आ रहा है, लो टेम्परेचर पे कम सॉल्युबल है, हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा सॉल्युबल है, तो इस वेरिएशन को, तब्दीली को हम जो है इस्तेमाल में लाते हुए ऑर्थोबोरिक एसिड को हम अलग भी कर सकते हैं और प्योरीफाई भी कर सकते हैं। नाउ द प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड ऑन कमर्शियल स्केल। तजारती पैमाने पर बोरिक एसिड की तैयारी। हमारे पास यहाँ पर टू मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड फ्रॉम कोलेमेनाइट ऑन कमर्शियल स्केल boric acid is prepared from natural calcium borate called colemanite. Ca2B6O11 5H2O. This is the chemical formula of colemanite. On commercial scale, boric acid, natural calcium borate. It is also the salt of boron, calcium salt of boron called colemanite. We prepare from colemanite the orthoboric acid. Colemanite is suspended in boiling water while sulfur dioxide gas is passed through it. Colemanite, we prepare suspension of colemanite in boiling water and pass sulfur dioxide gas through the suspension. Boric acid crystallized out from the solution while the other product, calcium sulfate, remains in the solution. On passing sulfur dioxide gas, the colemanite changes into boric acid. तो ये कमर्शियल तजारती पैमानों पर हम कोलेमेनाइट से तैयार करते हैं बोरिक एसिड को। कुदरती जो कुदरती कैल्शियम बोरेट है, कोलेमेनाइट है, उसका ये केमिकल फार्मूला है Ca2B6O11। इसको हम बॉइलिंग वाटर में इसका सस्पेंशन तैयार करते हैं। सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि पार्टिकल जो होते हैं वो पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, पार्टिकल जो होते हैं सस्पेंड हो जाते हैं, मुअल्लक हो जाते हैं पानी के अंदर। और जब इस सस्पेंशन से हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो बोरिक एसिड के क्रिस्टल बन जाते हैं सोल्यूशन के अंदर, और कैल्शियम सल्फेट जो है वो सोल्यूशन के अंदर सॉलिड फॉर्म में रहता है, सॉल्युबल फॉर्म में रहता है, डिजॉल्व रहता है। कोलेमेनाइट Ca2B6O11 5H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस 2 मोल वाटर gives us calcium sulfite. This is soluble salt, remains soluble in water, and orthoboric acid. It on cooling, orthoboric acid crystallizes out. We can filter out orthoboric acid. तो हम फिल्टर करके ऑर्थोबोरिक एसिड को निकाल सकते हैं जब ये ऑर्थोबोरिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर बनता है। सेकंड मेथड फ्रॉम बोरेक्स। A hot concentrated solution of borax is treated with calculated quantity of concentrated sulfuric acid. This reaction we have also studied in previous lecture. Borax is treated with calculated quantity of 1 mole of sulfuric acid, concentrated sulfuric acid. On cooling, crystal of boric acid forms separate out. तो बोरेक्स का जो सोल्यूशन होता है, गाढ़ा सोल्यूशन होता है, उसमें हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड डालने से बोरिक एसिड के जो क्रिस्टल बनते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। बिलो द रिएक्शन Na2B4O7 प्लस H2SO4 प्लस 5 मोल्स ऑफ वाटर गिव्स अस सोडियम सल्फेट प्लस ऑर्थोबोरिक एसिड। ये ऑर्थोबोरिक एसिड हमारा प्रोडक्ट है, ये इसके क्रिस्टल बनते हैं, इसको हम फिल्टर आउट कर देते हैं। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड और बोरिक एसिड। Property number 1, boric acid is white, lustrous, crystalline solid having a soft, soapy touch, very slightly soluble in cold water, but fairly soluble in hot. Boric acid, white, lustrous means shining crystalline solid, shine करता है, चमकता है ये. Having a soft, soapy touch. When you touch boric acid, you feel like you are touching a soap. आप सोप को टच कर रहे हैं. Very slightly soluble in cold water. ठंडे पानी में कम हल होता है, पहले पढ़ चुके हैं, और हार्ड वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होता है। इट इज वोलेटाइल इन स्टीम। अगर आप स्टीम में रखेंगे तो वेपराइज हो जाएगा, बोरिक एसिड सब्लाइम और वेपर में तब्दील हो जाएगा। बोरिक एसिड विच चेंजेस इनटू द वेपर इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम। इट रिएक्ट्स विद इथाइल अल्कोहल फॉर्मिंग इथाइल बोरेट। रिएक्शन इज गिवन बिलो। दिस इज 3 moles of ethyl alcohol. Ethyl alcohol is organic compound used as wine,
शराब के तौर पे इस्तेमाल होती है। ऑर्थोबोरिक एसिड प्लस 3 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, दिस इज इथाइल बोरेट, ट्राई इथाइल बोरेट एंड वाटर मॉलिक्यूल आर फॉर्म। तो ऑर्थोबोरिक एसिड का जब इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन होता है तो ट्राई इथाइल बोरेट बनता है और वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। पॉइंट नंबर 4, when heated strongly it swells to frothy mass. When we heat boric acid it changes into frothy mass, झाग बन जाती है जब हीट करते हैं बोरिक एसिड को। losing water molecule are lost from boric acid. It is first converted into metaboric acid. First is converted to, पहले ये metaboric acid में कन्वर्ट होता है, then to tetraboric acid, then to tetraboric acid and finally to boric anhydride, then to tetraboric and finally to boric anhydride. फिर ये टेट्राबोरिक एसिड में तब्दील होता है, बोरिक एनहाइड्राइड में तब्दील हो जाता है। फर्स्ट रिएक्शन ऑर्थोबोरिक एसिड heated at 100 degree centigrade changes into metaboric acid and water is lost, one water molecule is lost. Now the metaboric acid is heated to 140 degree centigrade. On further heating on to 140 degree centigrade it is changed into tetraboric acid and water. तो ये मेटाबोरिक एसिड है HbO2, ये टेट्राबोरिक एसिड में चेंज होता है और वाटर में चेंज हो जाता है। टेट्राबोरिक एसिड on red hot temperature, very high temperature, it changes into boric anhydride B2O3. This is boric anhydride and what molecule of water. तो टेट्राबोरिक एसिड को जब आप रेड हॉट करते हैं, गर्म करके सुरख कर देते हैं, तो ये बोरिक एनहाइड्राइड में तब्दील हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, it is very weak acid and ionized to very limited extent mainly as monobasic acid. It is very weak acid, बहुत ही कमजोर तेजाब है। It is ionized to very limited extent. It ionizes into this complex ion tetrahydroxoborate आइन, इसमें चेंज होता है प्लस हाइड्रोजन आइन, वेरी लिमिटेड एक्सटेंट, बहुत कम मिकदार में हाइड्रोजन आइन बनता है। मेनली एज मोनोबेसिक एसिड। ए मोनोबेसिक एसिड इज एन एसिड विच प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आइन फ्रॉम 1 मोल ऑफ एसिड। सो दिस इज रिएक्शन ऑर्थोबोरिक एसिड एडेड टू वाटर एंड दिस इज complex ion and this is hydrogen ion separated from the ऑर्थोबोरिक एसिड। जब आप ऑर्थोबोरिक एसिड को पानी में डालते हैं तो यहाँ पर कम्प्लेक्स आयन बनता है और ये हाइड्रोजन आयन बनता है। ये जो आयनाइजेशन होती है बहुत थोड़ी सी होती है, ज्यादा आयन नहीं बनते, यहाँ पर कम आयन बनते हैं। नंबर 6, इस सोल्यूशन हैज नो इफेक्ट ऑन मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इज एन इंडिकेटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि अपना कलर चेंज करता है एसिड और बेसिक सोल्यूशन के अंदर, एसिड बेस डालने से। वीक एसिड के लिए मिथाइल ऑरेंज यूज किया जाता है इंडिकेटर के तौर पर, लेकिन ऑर्थोबोरिक एसिड इतना वीक एसिड है कि मिथाइल ऑरेंज के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इट डज नॉट चेंजेस द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज। ये मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज नहीं करता। इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। अलबत्ता ये इतना एसिड होता है स्ट्रॉन्ग कि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको रेड कर देता है, ये इसका इफेक्ट होता है। इट इज पार्शली न्यूट्रलाइज्ड बाय कास्टिक सोडा टू गिव बोरैक्स। व्हेन वी ऐड टू द सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, caustic soda is added to solution of boric acid, borax is formed. This is borax. This is orthoboric acid. We add sodium hydroxide, caustic soda, and we get borax and 7 molecule of water. When boric acid is neutralized by soda ash, borax is obtained. This was the method of preparation of borax. We have studied in previous lecture the old method of preparation of borax from orthoboric acid. Now this method is not used. तो ये पुराना मेथड है। बोरिक एसिड को जब हम सोडा एश से रिएक्शन करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ तो बोरैक्स बनता है। ये पहले रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं बोरैक्स की तैयारी में। 4 मोल ऑफ बोरिक एसिड प्लस 1 मोल ऑफ सोडा एश gives us borax
6 moles of water and carbon dioxide gas. Point number 9. Boric acid, being a weak acid, cannot be titrated with alkali in the usual manner. बोरिक एसिड एक वीक एसिड है, कमजोर तेजाब है ये। अगर आप इसकी टाइट्रेशन करना चाहते हैं, टाइट्रेशन एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम एसिड का वॉल्यूम, एसिड की कंसंट्रेशन मालूम करते हैं अगर बेस की कंसंट्रेशन मालूम हो, या बेस की कंसंट्रेशन मालूम करते हैं अगर एसिड की कंसंट्रेशन मालूम हो। तो बोरिक एसिड की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए जब हम अल्कली से इसकी टाइट्रेशन करते हैं तो ये आम अंदाज में टाइट्रेशन नहीं होती, नॉर्मल वे में नहीं होती। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल व्हेन वी ऐड इन बोरिक एसिड सॉल्यूशन ड्यूरिंग द टाइट्रेशन वी ऐड ग्लिसरॉल। जब बोरिक एसिड की टाइट्रेशन करनी होती है तो हम ग्लिसरॉल डालते हैं। ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, ये आप देख सकते हैं, ये जो मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये ग्लिसरॉल है और ये ऑर्थोबोरिक एसिड है। Whenever you want to titrate the orthoboric acid with alkali, you have to add glycerine to the glycerol or glycerine, इसको ग्लिसरीन भी कहते हैं, ग्लिसरॉल ये केमिकल फार्मूला है। आप ग्लिसरीन ऐड करते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड में तो ये देखें ऑर्थोबोरिक एसिड कम्प्लेक्स बना, ऐसे कहते हैं बोरोन चीलेट कम्प्लेक्स इन वाटर। और हाइड्रोजन आयन देखिए अलग हो गया, दिस इज हाइड्रोजन आयन विच इज सेपरेट आउट एंड दिस हाइड्रोजन आयन कैन देन रिएक्ट विद द बेस ऑफ द alkali या with the hydroxyl ion of the alkali, this hydrogen ion reacts। तो जब आप ये बोरिक एसिड की टाइट्रेशन करते हैं अल्कली के साथ, अल्कली क्या होती हैं? वाटर अल्कलीज। अल्कलीज आर वाटर soluble bases। वाटर अल्कलीज, अल्कलीज आर वाटर soluble, these are water soluble bases। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अल्कली क्या होती हैं? ये वाटर सॉल्युबल बेसिस होती हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब भी आप टाइट्रेशन करते हैं बोरिक एसिड की इन अल्कली के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आप बोरिक एसिड के सोल्यूशन में ग्लिसरीन डालते हैं, ये कम्प्लेक्स बनता है और हाइड्रोजन आयन फ्री हो जाता है, हाइड्रोजन आयन आज़ाद हो जाता है। जब हाइड्रोजन आयन आज़ाद हो जाता है, ये हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन जो बेस है उसके साथ रिएक्शन करता है और न्यूट्रलाइज हो जाता है। अगर आप ये ग्लिसरीन नहीं डालेंगे, ग्लिसरॉल नहीं डालेंगे तो टाइट्रेशन नॉर्मल नहीं हो सकेगी, क्योंकि बोरिक एसिड इंतहाई वीक एसिड है और ये बहुत कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा और जो है टाइट्रेशन इसमें जो यूजुअल मैनर आम अंदाज में नहीं हो सकेगी, बहुत जल्दी एंड पॉइंट आ जाएगा, कलर चेंज बहुत जल्दी हो जाएगा फिनाफ्थलीन का। व्हाट इज फिनाफ्थलीन? फिनाफ्थलीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए। तो ये अल्कली हम इस्तेमाल करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो इसके लिए इंडिकेटर फिनाफ्थलीन इस्तेमाल करेंगे आप। तो फिनाफ्थलीन जब आप इस्तेमाल करेंगे इंडिकेटर के तौर पर, तो फिनाफ्थलीन का जो कलर होगा जब एंड पॉइंट आएगा, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन जो ये वाले हैं ये हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा इनका, तो इसका फिनाफ्थलीन का कलर चेंज हो जाएगा। अगर ये कलरलेस है तो इसका कलर पिंक हो जाएगा, अगर पिंक है तो कलरलेस हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा फिनाफ्थलीन का इस रिएक्शन के दौरान। ये प्रैक्टिकल में रिएक्शन किए जाते हैं, दीज रिएक्शन आर परफॉर्म इन प्रैक्टिकल। यूजेस ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड के इस्तेमालात, कहाँ इस्तेमाल होता है बोरिक एसिड? नंबर 1, बोरिक एसिड इज यूज इन मेडिसिन एज इन एंटीसेप्टिक। बोरिक एसिड जो होता है एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल होता है। एंटीसेप्टिक जो कि यानी स्किन पे लगाई अप्लाई की जाती है, ऐसी मतलब है मेडिसिन विच इज अप्लाइड टू दी स्किन फॉर ट्रीटमेंट फॉर क्योर दी वुंड। तो मरहम के तौर पे इस्तेमाल, डस्टिंग पाउडर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। बोरिक ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट मरहम को कहते हैं, इसको मरहम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है।
We can also use boric acid solution for an eye wash. If you have problem in eye problem, you can use boric acid solution for eye wash. आंखों की सफाई के लिए बोरिक एसिड का सोल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप खुद मत इस्तेमाल करें, डॉक्टर को आप मतलब कंसल्ट करें, डॉक्टर अगर रिकमेंड करता है फिर आप इस्तेमाल करें, खुद आई वाश के लिए आप मत इस्तेमाल करें इसको. It is used in pottery as glaze. In the upcoming topics we will study about the glazing. What is glazing? जब मतलब है when pottery is prepared, it is wet, it is heated. On heated pottery we add salt, silicates or borates. These salt melt down and form on cooling form compact and smooth and strong layer of strong water repellent layer which does not allow to wet the pottery after it is glazed. Glazing is a process in which we add sprinkle salt on pottery. ये एक प्रोसेस है ग्लेजिंग, इसमें जब ये पॉटरी मट्टी के बर्तन तैयार होते हैं उनके ऊपर हम साल्ट छिड़क देते हैं. ये साल्ट गर्म होने के बाद पिघलते हैं, पिघलने के बाद एक शफाफ और एक जो है मजबूत सी तह चढ़ती है. अगर आप में साथ फॉर एग्जांपल यू हैव cups in your house, two tea cups in which you take tea, they have a glassy layer which does not allow the tea to wet the cup. आपके घरों में कप होते हैं उनके ऊपर, अच्छा कप गीले नहीं होते आपके घरों में, आपने देखा कप जो होते हैं वो अंदर से गीले नहीं होते. गीले क्यों नहीं होते? उनके ऊपर कंपैक्ट लेयर होती है. तो ये कप जो है ये गीले नहीं होते क्योंकि उनके ऊपर जो मतलब है हम साल्ट छिड़कते हैं जब ये कप तैयार होते हैं, जब मतलब है नया वो गीली मिट्टी होती है उसके ऊपर हम ये साल्ट छिड़कते हैं, उसके ऊपर एक लेयर बनती है शफाफ सी. ये शफाफ सी लेयर जो होती है इन कप को फिर बाद में गीला नहीं होने देती. जो घरों में आपके कप इस्तेमाल करते हैं उसे इस प्रोसेस को ग्लेजिंग कहते हैं. इसको हम तफसील से पढ़ेंगे आगे. तो जो बोरेट ग्लेजेस होते हैं मोर फ्यूजिबल, जल्दी पिघल जाते हैं, फौरन पिघल के ऊपर लेयर बना देते हैं. देन सिलिकेट ग्लेजेस easily melt down. Borate glazes are easily melt down as compared to silicate glazes and possess a higher coefficient of expansion. और जब हीट करते हैं तो ये ज्यादा एक्सपेंड करते हैं. ऑन हीटिंग दे एक्सपेंड मोर एज कंपेयर टू द सिलिकेट ग्लेजेस एंड कवर मोर सरफेस विद स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट. तो जब हम थोड़ा सा साल्ट छिड़कते हैं तो बहुत ज्यादा कवर कर लेते हैं जगह पर फैल कर. ये जो बोरेट के ग्लेजेस होते हैं, सिलिकेट के जो ग्लेजेस होते हैं वो जगह ज्यादा कवर नहीं करते और जल्दी पिघलते भी नहीं हैं. इट इज आल्सो यूज इन कैंडल इंडस्ट्री फॉर स्टिफनिंग ऑफ विक्स. विक क्या होता है? व्हाट इज विक? विक जो मोमबत्ती में धागा होता है जिसको हम आग लगाते हैं. विक इज द थ्रेड इन द कैंडल टू विच वी लिट फायर. तो जो धागा होता है मतलब है मोमबत्ती उसमें, उसको हम विक कहते हैं जिसको हम आग लगाते हैं. अगर वो धागा इफ द विक इज बेंड, इफ दैट थ्रेड और विक इज बेंड, द वैक्स विल क्विकली मेल्ट डाउन. अगर आप ये धागा मुड़ा हुआ होगा, ऐसे मुड़ जाएगा, नीचे की तरफ होगा, झुका हुआ होगा, तो आग जब आप लगाएंगे फौरन पिघलेगी सारी वैक्स और मोमबत्ती फौरन घुल जाए, फौरन मतलब खत्म हो जाएगी, उसकी वैक्स जो होगी बुझ जल जाएगी. लेकिन यही अगर आप मोमबत्ती का जो विक है धागा है उसके ऊपर अगर आप ये लगा दें बोरिक एसिड का सोल्यूशन तो ये स्टिफ हो जाएगा, अकड़ जाएगा. अकड़ने के बाद ये सीधा खड़ा रहेगा, सीधा होगा. उसको आग लगाएंगे तो जो शोला वो धागा चूंकि मुड़े बेंट नहीं होगा तो जो मोम होगी वो पिघलेगी नहीं जल्दी से. मोम देर से पिघलेगी और मोमबत्ती देर तक जलती रहेगी. Short question. Write down the name and chemical formula of boric acid. This short question has, ये short question बोर्ड में आया हुआ है. ये वाला पहला टॉपिक था, आपने शुरू में पढ़ा था ऊपर. ये नेम और फार्मूला है बोरिक एसिड के. ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है.
हाउ ऑर्थोबोरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम कोलेमेनाइट। हाउ ऑर्थोबोरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम कोलेमेनाइट। जिससे ये कोलेमेनाइट से ऑर्थोबोरिक एसिड हमने तैयार किया। कोलेमेनाइट से ये सारा लिखेंगे आप 2 मार्क। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, ये हीट किया हमने यहाँ से 4 पॉइंट ये सारा लिखेंगे, ये रिएक्शन भी लिखेंगे आप साथ, केमिकल रिएक्शन भी लिखनी है आपने। व्हाट आर द यूजेस ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। ये भी बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सॉरी आया हुआ है ये वाला। व्हाट आर द यूजेस ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। तीनों यूजेस लिखेंगे, कम से कम 2 तो लाजमी लिखें आप यूज, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। एक 5वां क्वेश्चन जो यहाँ मिस हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ बोरिक एसिड is converted into borax and vice versa। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ बोरिक एसिड कन्वर्टेड इनटू बोरैक्स एंड वाइस वर्सा। यानी कि बोरिक एसिड को बोरैक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बोरैक्स को बोरिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये दोनों यहाँ पे दिए हुए रिएक्शन, ये आप देखें रिएक्शन, ये जो आपने पढ़ा था, ये हमने बोरिक एसिड को बोरैक्स में कन्वर्ट किया। ये रिएक्शन एक तो ये लिखेंगे और एक तैयारी के तरीके में रिएक्शन लिखा हुआ है, ये हमने बोरैक्स को बोरिक एसिड में कन्वर्ट किया। ये दोनों रिएक्शन आप लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये हमने बोरैक्स से बोरिक एसिड बनाया है और यहाँ नीचे जो है ये हमारे पास पॉइंट नंबर 7, ये बोरिक एसिड से बोरैक्स बनाया है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।